it's me Hussain, IELTS and PT expert, and you are watching AU Educationalist channel. Dear viewers, today I have brought a listening video for you, and I hope that after watching this video, you will be able to get Band 8, Band 9 scores in listening section. So let's begin. So in listening session, as in my earlier video, I have already described in introduction that there will be 4 parts. Means in listening, you will be given 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4. And altogether it will be 40 questions. Every part carries 10 questions. So let's discuss first Part 1 and Part 2. In Part 1, you will get one telephonic call. मतलब आपको एक कॉल सुनाई जाएगी और उस कॉल को सुनने के बाद आपको जो blanks हैं वो solve करना होंगी. Mean to say is that you will be given 10 questions in that and answers will be 1 word, 2 word और 3 words. Mostly ये inquiries होती हैं. कोई भी gym inquiry, jobs inquiry, hotel booking inquiries or different type of inquiries, but this is confirmed that it will always be a telephonic call and there will be 10 questions in that. और ये सोशल टॉपिक होता है. पार्ट 2 भी सोशल से रिलेटेड ही होता है. इसमें मोनोलॉग होता है, मतलब कि एक ऑडियो आपको सुनाई जाएगी जिसमें एक शख्स और एक वन पर्सन ही विल गिव और डिलीवर अ लेक्चर इन दैट. मोस्टली इसमें मैपिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं. इसमें कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं एंड आफ्टर लिसनिंग द ऑडियो you have to fill up the map which options which have been given. मतलब जो भी options आपको दिए गए हैं उसमें A, B, C, D वो आपको मैप जो है वो फिल करना होता है. चलिए चलते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरफ. पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो एकेडमिक से रिलेटेड होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है. इन पार्ट 3 द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट बिकॉज इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में A, B, C, D ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं एंड मोस्टली व्हाट द स्पीकर्स आर सेइंग इन द ऑडियो मोस्टली आंसर्स आर मैचिंग. सो हियर दे चेक योर लिसनिंग कैपेसिटी दैट do you have any idea that which answer is correct one. And one more problem which student feels in that, because there are 3 to 4 voices, means 3 से 4 लोग एक साथ जो है वो डिस्कशन करेंगे. मोस्टली डिस्कशन होती है टीचर्स और लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान. सो 3 to 4 voices you will listen, so you have to cope up with 3 to 4 voices. Here will also you will get 10 questions and you have to just stick after the listening the audio. And then let's move on to part 4. In part 4 it's also academic. मतलब कोई भी एक लेक्चर आपको दिया जाएगा, एक ही शख्स की ऑडियो आपको सुनाई जाएगी. He can be a teacher, he can be a doctor, he can be a scientist. And after listening him, you have to write answers in 1 word, 2 word or 3 words. Mostly ये भी fill in the blanks ही होती हैं. Multiple choice question section 4 में बहुत कम होते हैं. So after listening all those section 4, you have to write answers in your question copy first of all. हर सेक्शन में मैं आपको नाज़रीन बताता चलूं कि आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि आप जो है वो प्रिपेयर कर सकें कि आने वाले सेक्शन में और आप कुछ रिलैक्स भी कर सकें और आंसर्स को प्रिडिक्ट भी कर सकें. सो हर जब एक सेक्शन खत्म होता है तो उसके बाद आपको 30 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम दिया जाता है. टोटल मिलाकर ऑडियो जो है वो 30 मिनट्स का होता है एंड आफ्टर 30 मिनट्स यू विल बी गिवन 10 मिनट्स टू ट्रांसफर योर आंसर्स इन आंसर शीट. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट to tell you is that always write answers in listening section in capital letters. So dear viewers, let's move on to tips that how you can solve these all 40 questions in listening. Viewers, IELTS listening tips have appeared in front of your computer screen, and the first tip that is predict the topic. Means in the earlier I have already said that the first part will be social, related to social topics. Second will also be social, and third and fourth will be academics. So in this you can predict that what kind of a topic they are going to discuss in the audio. Let's move on to predict the questions because as this also I have mentioned previously that when the blank is given, so we can predict that what we are going to write. Are we going to write a name कि हम नाम लिखना चाह रहे हैं, नंबर लिखना चाह रहे हैं, या हम कोई एड्रेस लिखना चाह रहे हैं. So ये भी हम प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं easily.
Next one is use a minute to through each questions. That's already I have said that आपको 30 सेकंड जो है वो दिए जाएंगे, तो 30 सेकंड में आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर्स को प्रिडिक्ट करना है कि क्या आंसर्स आने वाले क्वेश्चंस में आप लिख सकते हैं. मूव ऑन इफ़ यू मिस एन आंसर. सपोज़ कि आपको एक वर्ड जो है जो ऑडियो में वो कैच नहीं कर सके, तो आपको कंटिन्यू रहना है. ये नहीं कि आपको एक आंसर मिस हो गया है तो आपने आगे वाले आंसर्स भी जो है वो मिस करने हैं. अगर एक आंसर जो है वो मिस हो जाता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन कंटिन्यू. डेफिनेटली 1 or 2 क्वेश्चंस विल नॉट मेक मोर इफेक्ट ऑन योर रिजल्ट्स. Now next one is watch to quote the lesson or visual instructions if you are completely lost. मीन्स कि जो भी आपको एग्ज़ाम के दौरान और एग्ज़ाम पेपर्स में जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो उसमें आपको वो सुनते रहें, तो डेफिनेटली आप जो है वो मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं और राइट आंसर को राइट प्लेस पे पुट कर सकते हैं. वॉच व्हेन द कैंडिडेट्स टर्न ओवर द एग्ज़ाम पेपर्स. मीन्स क्योंकि आप जो इन्वायरमेंट है उसको भी आप जो है वो एक तरीके से जान सकते हैं कि इन्वायरमेंट में आपके पास क्या चल रहा है. सो आपको अपना माइंड भी हाजिर रखना है, सुनना भी है और आंसर्स को लिखना भी है. लुक आउट फॉर पैराफ्रेजिंग. मीन्स कंप्यूटर जो है वो डेफिनेटली ऑडियो के अंदर आपको पैराफ्रेजिंग सुनाई जाएगी. सेम वर्ड्स जो है वो कभी भी यूज़ नहीं किए जाते. सो आपको जो है वो अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, और जो भी सिनोनियम्स उसमें ऑडियो में जो यूज़ हुए हैं उन सिनोनियम्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो आंसर्स को लिखना है. वन इज़ इग्नोर वर्ड्स यू डोंट नो. डेफिनेटली जो 30 सेकंड का जो ऑडियो आपको सुनाया जाएगा, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो आपको एक एक वर्ड जो है वो आपको समझ में आ जाए. सो जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता उसे छोड़ दिया जाए, नो प्रॉब्लम इज़ दैट. बट हमें जो की वर्ड्स चाहिए वो तो हमें उसमें से लेना पड़ेंगे, बट ईच एंड एवरी वर्ड विच दे हैव सेड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. And underline the keywords. Definitely it's you paraphrasing, or we can say when you look through the questions, first particularly 3 to 4, underline the keywords. उसमें कुछ भी नाम भी हो सकता है, प्लेस का नेम भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. सो उसमें फिर ऑडियो जो है वो सिनोनियम यूज़ करेगा. अगेन आई विल से दैट द सेम वर्ड्स विल नेवर बी यूज्ड. हमें आइल्स पढ़ने के लिए डेफिनेटली हमें सिनोनियम्स पर बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना होता है. Take care with the grammar and spells. I would say that grammar is not much important, I can say, because कि तो सिर्फ आपने सुनना है, लिसनिंग कैपेसिटी है. बट ग्रामर हम इसलिए कहते हैं कि समटाइम्स आप जो है वो नाउन के जगह पर वर्ब या एडजेक्टिव जो है वो यूज़ कर जाते हैं, या हम सिंगुलर प्लूरल की जो मिस्टेक कर जाते हैं. तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक रहना है कि हम सिंगुलर प्लूरल्स की जो है वो मिस्टेक्स जो है वो ना करें. और डेफिनेटली हमें जो स्पेल्स है वो तो करेक्ट लिखना ही होगा, बिकॉज के अगर आप कोई भी वर्ड जो है वो रॉन्ग स्पेल करते हैं तो डेफिनेटली उसका मार्क्स जो है वो आपको नहीं दिए जाएंगे. एंड यूज़ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग्स, बोथ आप यूज़ कर सकते हैं. इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ ब्रिटिश ही यूज़ करें, आप अमेरिकन स्पेल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्पेल जो है वो राइट होने चाहिए. डोंट वरी अबाउट व्हाट राइट ऑन द एग्ज़ाम शीट, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू चेक दैट. कोई भी उसे जो है वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि 10 मिनट उसके बाद आपको दिए जाएंगे कि आपको जो आंसर कॉपी दी जाएगी और इस आंसर कॉपी में आपको जो है वो आंसर्स लिखना होंगे. सो डेफिनेटली जो भी आपने क्वेश्चन कॉपी के अंदर लिखा दैट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट. तो बाद में भी अगर आपके माइंड में कोई राइट आंसर आता है या कोई राइट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो आप वो डिफरेंट भी टिक कर सकते हैं इफ़ यू थिंक दैट यू हैव टिक्ड रॉन्ग इन question copy. Students, read the instructions. This is also very important because sometimes they say you to write one word answer, sometimes 2 word answer, or sometimes they may say 3 words answer as well. So definitely you have to see instructions first. Use uppercase because you will have 10 minutes. So in 10 minutes easily we can write in capital letters. Never use lowercase letters in listening section. Get used to the British accent. I want to say that listen BBC, because there are some words which is we can say different in American language and different in British language. Just simple example I will give you, that we say truck in American English, but we say lorry in a British language. So there are some differences in British and American accent. So if you are appearing in IELTS exams, so I want to suggest
suggest you that go and watch BBC, British Broadcast Center. So definitely that will help you out in your examinations. So the next one, practice the pronunciation of letters and numbers. As already I have said that it will be a telephone a call, or you have to cope up in section 1 with the 2 voices, in section 2 1 voice, in section 3 up to 4 voices, and in section 4 again another single voice you have to cope up. So altogether around 7 to 8 voices, तकरीबन 7 से 8 किस्म की जो है वो प्रोनाउंसिएशंस और डिफरेंट किस्म के एक्सेंट्स पे आपको ऑलवेज जो है वो कोप अप करना पड़ेगा. सो डेफिनेटली जितना आप जो है वो इंग्लिश एक्सेंट को सुनेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को सुनेंगे, उतना ही आपके लिए ईजी होगा आइल्स लिसनिंग में मार्क्स गेन करने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ केयरफुल विद वर्ड्स यू राइट डाउन, बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि स्पीकर्स पहले एक वर्ड्स को डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और बाद में डिफरेंट वर्ड्स भी बोल जाते हैं. जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ कि वो फ़ोन नंबर बताएंगे कि 9813 और बाद में कहेंगे सॉरी 9812. सो जो आफ्टर वर्ड्स कहा गया है वो आंसर जो है वो राइट है. तो आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है कि जो भी स्पीकर नेक्स्ट आंसर देता है वही आपको जो है वो अपनी आंसर कॉपी में लिखना होगा. डोंट लीव आंसर्स ब्लैंक, क्योंकि उसके आइल्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन IELTS. सो देन व्हाई टू लीव द ब्लैंक्स. सो वट एवर द आंसर यू गेट, इवन इट इज़ राइट और रॉन्ग, बट ट्राई टू राइट आंसर. सो मे देयर इज़ बिकॉज इफ you guess as well, there is a chance that you may get your marks. Next one is transfer your answers to answer sheet carefully, because के ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी आप आंसर शीट में लिखेंगे वही आंसर चेक किया जाएगा. सो नेक्स्ट वन इज़ चेक योर आंसर्स. मिसले आंसर लिखने के बाद भी आपके जो स्पेल्स हैं, जो ग्रामर है, वो आपको लाजमी चेक करना होगा, बिकॉज के 10 मिनट आपको दिए जाएंगे. सो 10 मिनट्स आर इनफ, आई थिंक सो. इन 10 मिनट्स ईजिली यू कैन चेक योर आंसर्स व्हाट यू हैव रिटन. मोस्टली ग्रामेटिकल, अगेन आई विल से बी वेरी केयरफुल इन सिंगुलर्स and plurals. And if you are confused that what the answer is singular or plural, so I want to suggest you that add s in bracket, so definitely you will be given your marks if answer is correct. And listen to very carefully, that is definitely it's a listening test. So whatever the speakers are saying, you have to deal with them 30 minutes, and 30 minutes you have to listen very carefully कि वो क्या कह रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बातचीत चल रही है, और कुछ आइडियाज़ भी आपको उसमें लगाना होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में. तो जो भी लिसनिंग में आपको सुनाया जाए वो बहुत ही केयरफुली आपको सुनना होगा. And then finally practice listening. Again I will say that listen BBC, go for the English movies, and go for the IELTS. We have 1 to 14 new books, and especially from book 14, book 13, book 12, you have to listen very carefully. If you practice around 3 to 4 books, because one book carries 4 tests, so if you practice around 15 to 20 tests, so I can guarantee that you will get your band 7, band 8 scores. So my dear viewers and dear students, I hope that you understand these all techniques and methodologies, and you will apply these all methods in IELTS examinations, and I hope that you all will get your desired scores and the dream which you have seen to study abroad, which will be fulfilled. So like and subscribe my channel and share it with your friends, and I will come up with new topics in IELTS that how to tackle. Thank you very much.